हाँ जी, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਟਾਰਗੇਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਐਗਜ਼ਾਮ ਚੈਨਲ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਿਓ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਲਾਈਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ, ਕੁਝ ਹੈਕਟਿਕ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਟੇ ਰਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਬਟ ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਮੇਰੀਆਂ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲਗਭਗ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਬੇਟਾ। ਹਾਂ, ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਕੋਡਿੰਗ ਡਿਕੋਡਿੰਗ ਹੋਏਗਾ ਬੱਚੇ। ਕੋਡਿੰਗ ਡਿਕੋਡਿੰਗ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪਾਰਟ 2 ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਕੋਡਿੰਗ ਡਿਕੋਡਿੰਗ ਦਾ ਪਾਰਟ 1 ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ 4 ਪੈਟਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ, ਕੋਡਿੰਗ ਡਿਕੋਡਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਟਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟ 2 ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਕੋਡਿੰਗ ਡਿਕੋਡਿੰਗ ਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਅੰਤਿਮ ਪਾਰਟ ਹੋਏਗਾ ਕੋਡਿੰਗ ਡਿਕੋਡਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਡਿੰਗ ਡਿਕੋਡਿੰਗ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਛੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਖਾਵਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬੈਸਟ ਐਫਰਟ ਦਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਔਰ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹਨਾ ਬੱਚੋ। ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਟ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ, ਮੇਰੇ ਪਰਸਨਲ WhatsApp ਨੰਬਰ ਤੇ ਵੀ, ਔਰ ਇਵਨ ਕਿ ਬੱਚੋ ਜੋ ਗ੍ਰੇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਐਪ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਏ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਆਨਸਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਹੀ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਟ ਕੀਤੇ ਸੀ ਬੱਚੋ। ਤਾਂ ਆਓ ਬੱਚੋ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਾਠ ਹੈ ਕੋਡਿੰਗ ਡਿਕੋਡਿੰਗ ਪਾਰਟ 2। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹ 4 ਪੈਟਰਨ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕਿਆ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ। ਔਰ ਜੋ 4 ਪੈਟਰਨ ਨੇ ਉਹ ਜੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ। ਜੋ ਬੱਚੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਰੂਰ ਪਾਰਟ 1 ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ, ਉਹਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਬੱਚੋ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਆਪਣਾ ਪਾर्ट है बच्चों वो 5th पार्ट है, इज अ 5th पैटर्न मैं कह सकना, 5th पार्ट नहीं 5th पैटर्न कह सकना। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਆਪਣਾ 5th ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਬੇਟੇ। ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਪੈਟਰਨ ਬੱਚੋ, ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚੋ। ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਪੈਟਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ A ਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ Z ਮਿਲਿਆ, Y ਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ B ਮਿਲਿਆ, X ਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, C ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਮੈਥਡ ਕਿਹਾ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ। मतलब की होया A अगर 1 पे है तो Z 26 पे है, दोनों का जोड़ करिए तो 27 बनता है बच्चों। Y अगर 25 पे है तो B 2 पे है, दोनों का जोड़ करिए तो 27 बनता है बच्चों। इसी तरह X अगर 24 पे है तो C 3 पे है, दोनों का जोड़ करिए तो 27 बनता है। किसी भी दो डिजिट का जोड़ अगर 27 बन रहा है तो इट मीनस वो लॉजिक जो लग गया है ओपोजिट लग गया है, ओपोजिट मैथड का लॉजिक लग गया है। आओ सब तो पहला तो आप 2 मिनट ला के सारे ओपोजिट मैथड ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਲੈਣੇ ਆ ਬੱਚੋ। A ਦਾ ਮੈਂ ਅਗਰ ओपोजिट ਕਹਾਂ ਤਾਂ Z ਹੁੰਦਾ ਹੈ, Y ਦਾ ओपोजिट ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਲਿਖਿਆ, ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਇੱਧਰ B ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ, ਇੱਧਰ Y ਲਿਖਦਾ ਬੱਚੋ, Y ਬੇਟੇ। ਔਰ ਇੱਧਰ C ਲਿਖ ਦਿੰਨੇ ਆਪਾਂ, ਔਰ C ਦੇ ओपोजिट ਆਪਾਂ X ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੋ। ਫਿਰ D ਆਏਗਾ, D ਦੇ ओपोजिट W ਰੱਖ ਦਿੰਨੇ ਆ ਬੱਚੋ। E आएगा बच्चों, E ਦੇ opposite ਆਪਾਂ V ਰੱਖ ਦਿੰਨੇ ਆ ਬੱਚੋ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ F ਆਏਗਾ ਬੱਚੋ, F ਦੇ opposite ਆਪਾਂ U ਰੱਖ ਦਿੰਨੇ ਆ ਬੇਟੇ। G ਦੇ opposite ਆਪਾਂ T ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੋ, G ਦੇ opposite ਆਪਾਂ T ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੋ। H ਦੇ opposite ਆਪਾਂ S ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ I ਦੇ opposite ਆਪਾਂ R ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ J ਦੇ opposite ਆਪਾਂ ਕੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਡੀਅਰ, Q ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੋ। ਔਰ K ਦੇ opposite ਆਪਾਂ ਕੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਡੀਅਰ, P। और L ਦੇ opposite ਆਪਾਂ O ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਲਾਸਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਚਿਆ ਡੀਅਰ M, M ਦੇ opposite ਆਪਾਂ N ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ एक पैटर्न जो है opposite पैटर्न है, और opposite पैटर्न ਦਾ ਮਤਲਬ A ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ Z ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਦਾ ਜੋੜ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 27 ਬਣੇਗਾ। opposite पैटर्न ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦਾ ਸਮ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ ਉਹ 27 ਬਣੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ G ਔਰ T, H ਔਰ S ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੋਗੇ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡਾ 27 ਆਏਗਾ। ਫਿਰ ਬੱਚੋ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਏ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ BY ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਬਾਏ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ, ਹਨਾ, ਬਾਏ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ, ਬਾਏ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। CX ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 6 ਲਿਖ ਲਓ ਬੇਟਾ, DW ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਊ ਲਿਖ ਲਓ ਬੇਟਾ, ਡਿਊ ਲਿਖ ਲਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਇਵਨਿੰਗ ਬੇਟਾ, ਇਵਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਲਿਖ ਲਓ ਬੱਚੇ। FU मतलब 4 लिख लो बेटा, F ਦੇ ਅੰਦਰ 4 भी आंदा बच्चों। GT बेटा, GT रोड लिख लो बेटा, GT रोड लिख लो बेटा। और HS मतलब हाई स्कूल लिख लो बेटे,
हाई स्कूल लिख सकते हो, इस तरह याद रह जाएगा। 1 मिनट लगेगा बस याद करने पे। IR लिख लो, इंडियन रेलवे बेटा, इंडियन रेलवे लिख सकते हो बच्चों। JQ तुसी लिख लो जंगल क्वीन बेटा, है ना, जंगल क्वीन लिख सकते हो। KP ਨੂੰ ਕਾਨਪੁਰ ਲਿਖ ਲਓ ਪੁੱਤ, ਕਾਨਪੁਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਔਰ LO ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਵ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਲਓ, ਔਰ MN ਤੇ ਮੈਨ ਲਿਖ ਲਓ। ਮਿੰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਵੀਡੀਓ ਰੋਕੋ ਔਰ ਸਾਰੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪੜੋ। ਬਾਈ ਮਤਲਬ BY, CX ਮਤਲਬ 6, DW ਡਿਊ, EV evening, FU 4, GT road, HS हाई स्कूल, IR इंडियन रेलवे, JQ जंगल क्वीन, कानपुर KP, लव LO, मैन MN बेटा। ਇੱਥੇ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਰੋਕ ਕੇ 1 ਜਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਦੇ ਜੋ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਨੇ, ਜੋ 13 ਦੇ 13 ਲੈਟਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਬੱਚੋ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ। ਆਓ ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਪੈਟਰਨ ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਡੀਅਰ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਰਡ ਆਇਆ ਬੱਚੋ, ਵਰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਉਸਨੇ ਕਿੰਗ बेटे, किंग लिखा उसने KING, किंग का कोड लिखा बच्चों PRMT, और आपने पूछा रेल का कोड दसो की होएगा, RAIL, रेल का कोड पूछा बच्चों। सब तो पहला काम तुसी प्लेस वैल्यू लिखो, तुहानू प्लेस वैल्यू तो बड़ी जल्दी समझ आ जाएगा, बट जो तुसी प्लेस वैल्यू नाम ही लिखो ना तो तुहानू एक और चीज़ भी दसांगा बच्चों। देखो जे तो जी मैं ट्रिक हुण पिछली दस के आया स्लाइड विच, उस हिसाब नाल तुसी याद कर लेंदे हो। तो KP मतलब कानपुर, इट मीनस ओपोजिट होया। IR मतलब इंडियन रेलवे, MN मतलब मैन, GT मतलब GT रोड, इट मीन सब का जोड़ प्यारे बच्चों की बनता है 27 बनता है। एक तो ये तरीका है, इस तरह कर लो। दूसरा तरीका, कोई दोस्त मित्र जिसनों ये याद नहीं हो रही तो वो पुराना लॉजिक है ही है, किंग नू PRMT लिखे बच्चे, 11 ਤੇ 9 ਤੇ 14 ਤੇ 7 ਤੇ ਇਹਦੀ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖੀ। ਇਹਦੀ ਬੇਟਾ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ 20, 13, 18 प्यारे बच्चों और 16। 11 ਤੇ 16 27, 18 ਤੇ 9 27, 13 ਤੇ 14 ਡੀਅਰ 27 और 20 ਤੇ 7 27। ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੋਲ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਸਮ ਹਮੇਸ਼ਾ 27 ਹੋਏਗਾ। ਆਓ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। R ਹੈ ਤਾਂ I ਪਾ ਦਈਏ, ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਲਵੇ, A है तो Z पा दिए, फिर I है तो R पा देने, L है तो O लव, LO लव, इंडियन रेलवे, A to Z और RI फिर इंडियन रेलवे बच्चों। तो रेल का कोड बन गया IZRO। उम्मीद करना तुसी रिदम नूं पकड़ पाए होवोगे, क्वेश्चन नूं समझ पाए होवोगे। आओ डियर नैक्सट क्वेश्चन करते हाँ, ਉਹਦੇ बिहाफ ਤੇ अगला क्वेश्चन भी सॉल्व करते हाँ बच्चों। जो मेरे को नैक्सट क्वेश्चन है, कोड है हैंड का, HAND, हैंड का कोड है मेरे को SZMW, और मैनू पूछा गया है सिल्क का कोड बच्चे। मैनू जो पूछा गया है वो सिल्क का कोड पूछा गया है। अगर तो अपन प्लेस वैल्यू याद है तो प्लेस वैल्यू लिख दो, नहीं तो HS मतलब हाई स्कूल, A to Z, M ते N मैन, D ते ड्यू, DW ड्यू हो गया, इट मीनस ऑपोजिट हो रहे हैं बस। फिर हाई स्कूल मतलब HS, IR इंडियन रेलवे, LO लव, KP कानपुर। बच्चों याद आया बच्चों? इस वे नाल तुसी क्वेश्चन नो सॉल्व कर सकते हो। इसी ओपोजिट मैथड, इसे ओपोजिट मैथड दे विच मैं थोड़ा हाई लेवल का हुण क्वेश्चन तुहानू देन जा रहा हूं। मेरे को वर्ड आया प्यारे बच्चों किंग, ये मेरा तीसरा क्वेश्चन होएगा। ये दूसरा क्वेश्चन सी डियर, नाउ तीसरा क्वेश्चन बच्चों। मेरे को वर्ड आया किंग बेटे, और किंग का कोड लिखा KING। किंग का जो उन्होंने कोड दिता आपां नूं, वो दिता बच्चों PRMT बेटा, PRMT। आई थिंक नहीं, इस तरह नहीं बच्चों, किंग का कोड आपां नूं थोड़ा चेंज करना है, क्योंकि ये तो मैं करवा गया क्वेश्चन। हाँ देखो एक मिनट ली मैं रब कर ला ताकि तुसी आसानी नाल इस चीज नूं समझ पाओ डियर। एक मिनट ली बेटा, किंग का कोड जो आपां नूं दिता गया वो कोई होर है। एक बारी आपां दोबारे देख लेने, लिख लेने, क्योंकि मेरे को रिपीट च पहला क्वेश्चन लिखा था। किंग का कोड लिखा बच्चों TMRP बेटे, TMRP। और आपां नूं पूछा गया हैंड का कोड की होएगा।
HAND हैंड ਦਾ ਕੋਡ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਬੱਚੋ? ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ 11 ਤੇ ਹੈ, ਇਹ 9 ਤੇ ਹੈ, ਇਹ 14 ਤੇ, ਇਹ 7 ਤੇ, 16 18 13 ਔਰ 20 ਬੇਟਾ ਆ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਹੈ ਨਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬੱਚੋ, ਉਸਨੇ ਇਸ K ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ P ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 27 ਬਣਾਇਆ, KP ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, G ਤੋਂ T ਇੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਬੱਚੋ, ਇੱਥੇ 27, ਸੇਮ N ਤੋਂ M ਇੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ 27, ਔਰ I ਤੋਂ R ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਣਾਇਆ 27। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪੈਟਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਪੈਟਰਨ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕ੍ਰਾਸ ਪਲੱਸ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਦੋ ਮੈਥਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਕੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਸ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ H ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ S ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਹਾਈ ਸਕੂਲ। D ਤੋਂ W ਡਿਊ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, A ਤੋਂ ਰਾਜੇ ਇੱਥੇ Z ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ N ਹੈ ਤਾਂ M ਮੈਨ। ਕੋਡ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬੇਟਾ। ਹੋਪ ਸੋ ਸਮਝ ਆਇਆ ਬੱਚੋ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਥੋੜਾ ਅਲੱਗ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਜੋ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਣਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਅਲੱਗ ਦੇਣਾ। ਇਸੇ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਥੋੜਾ ਘੁਮਾ ਕੇ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਿਵੇਂ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਓਡ ਵਨ, ਅਲੱਗ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਵੱਖਰਾ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਓਡ ਬੇਟੇ, ਓਡ ਵਨ ਜੋ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਕਿਵੇਂ? ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ A ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ, A ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ KP, B ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਡੀਅਰ KC, और C ऑप्शन है मेरे को GT, और इसी तरह उसने D ऑप्शन दिता बच्चों HS बेटे। ठीक है, अगर तुहानू याद है तो KP कानपुर है ना, KP कानपुर, इट मीन्स 27 बन रहे हैं। KC मतलब कुछ भी ऐसा वर्ड नहीं है, और 11 ते 3 किन्ने बन गए बच्चों 14। GT तुहानू याद है 27 बन रहे हैं, G का ओपोजिट T है, हाई स्कूल H का ओपोजिट S है। तो फाइंड द ऑड वन की आया, मेरा आंसर आ गया बच्चों B। तो कई बार इस तरह के क्वेश्चन भी इस कंसैप्ट में पूछ लेना बच्चों। तो उम्मीद करदा तुहानू फिफ्थ पैटर्न जो ओपोजिट पैटर्न है वो समझ आ गया होएगा बेटे। बस जो कोड ने उन्होंने याद करो, उन्होंने बिहाफ से तुसी क्वेश्चन नु सॉल्व कर सकते हो। आओ डियर नेक्स्ट पैटर्न करते हैं इसी टॉपिक पे ही बच्चे। जो सिक्स्थ पैटर्न है ना बच्चे, उसनों क्या जाता है कॉमन कोडिंग बेटा। जो मैं सिक्स्थ पैटर्न देने जा रहा हाँ, कई बार इस तरह के क्वेश्चन भी तुहानू देगा बच्चे, वो है बच्चों कॉमन कोडिंग। कॉमन कोडिंग इस तो बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, जेडे जेडे टाइप तुहानू करवा दिते बच्चों, हाई लेवल के टाइप सारे दे सारे तुहानू दसे जा रहे हैं। कॉमन कोडिंग का मतलब बेटे नो लॉजिक, कोई भी लॉजिक ना लगे, किसी भी तरह का कोई लॉजिक ना हो, उसनू कॉमन कोडिंग कह दिता है। जिमें एक क्वेश्चन करते हैं प्यारे बच्चों, आपां नू मैंगो वर्ड दिता, MANGO मैंगो बेटे। मैंगो का कोड लिखा उसने ZYXWT बेटे। फिर एक वर्ड और दिता उसने, दिता ऑरेंज बेटे, ORANGE बेटे, ऑरेंज। ऑरेंज का कोड दिता उसने TVYXWS बेटे। और इसी तरह ही उसने एक मैनू और वर्ड दिता एप्पल बच्चों, APPLE बेटे। एप्पल का कोड दिता अपन उसने बच्चों YBBCS बेटे। इस तरह मैनू इको क्वेश्चन दे विच उसने 3 वर्ड दे दिते प्यारे बच्चों। जेकर वो कॉमन कोडिंग का क्वेश्चन पाएगा ना तुहानू, तो कॉमन कोडिंग दे विच एक गल तुसी हमेशा याद रखियो, एक दे नालों ज्यादा वर्ड आएंगे बच्चों, एक दे नालों ज्यादा वर्ड आएंगे। तो मेरे को 3 वर्ड आ गए बच्चों, तिना दे कोड भी गिवन ने क्वेश्चन दे विच भी बच्चों। और उसने मेरे तो पूछा ग्रेप का कोड की होएगा, उसने जो पूछा GRAPE ग्रेप का कोड बेटे पूछा, GRAPE ग्रेप का कोड मेरे तो पूछा है। तो जो कॉमन कोडिंग का लॉजिक लगता है ना, तो तुसी किसी तरह का कोई कंसैप्ट यूज नहीं करना है जो आप पहला करके आए। कॉमन कोडिंग का मतलब ही है नो लॉजिक, कोई लॉजिक नहीं है, बस कुछ नहीं करना। जिमें ए दे थले वाई है, चेक करो, सेम ए दे थले वाई इत्थे भी आ गया, अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, इत्थे भी ए दे थले वाई आ गया। तुहाडे कोल भी ए है, तुसी ए दे थले वाई लिख दो बेटा। क्लीयर हुई गल बच्चों। इसी तरह चेक करो आर दे थले वी है, आर का कोड इन्होंने वी दिता है, आर का कोड तुसी भी वी लिख दो।
जी चेक करो, जी का कोड की दे रहा बच्चे, W दे रहा है, इत्थे भी जी का कोड सेम ही कोड देगा बेटे, सेम तुसी लिख दो, जी का कोड W लिख दो। P का कोड इसने बेटे B दिता है दोनों जगह पे, तो P का कोड ਆਪਾਂ ने B दे दिता, और E का कोड बेटा उन्हें S दिता है, इत्थे भी देखो बेटा, क्लीयर हो रही गल, तो E का कोड भी ਆਪਾਂ सेम दे देने S दे देने। तो प्यारे बच्चों होया कि नो लॉजिक, कॉमन कोडिंग का मतलब नो लॉजिक, तो तुसी एज इट इज इस तरह ही आंसर रख देंगे। तो मेरा आंसर आया WVYBS बच्चों। कई बार बच्चों के मन च क्वेश्चन आ रहा होगा सर जिमें इतने एक बार P का कोड उसने B दे दिता, तो दूसरी बारी P का कोड अगर B ना देवे, तो प्यारे बच्चों एक गल याद रखियो, कॉमन कोडिंग दे विच ये चीज़ सेम करेगा। जे A का कोड इत्थे Y है, तो जे किते दूसरे क्वेश्चन दे विच A आया उत्थे भी Y ही देगा, अगर तीसरे विच भी आया तो उत्थे भी Y देगा। तो इसनों असीं कॉमन कोडिंग का क्वेश्चन कह सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं और करवाना इसी तरह का, फिर आप अगे चलांगे, अगले कंसैप्ट में समझांगे। बिल्कुल आसान जहा कंसैप्ट है, बट कई बार पजल कर जाता है बच्चे को, इस करके मैं इसको इन्वॉल्व किया अज की वीडियो में। बच्चों उस तो बाद है अगला क्वेश्चन बेटे, ईजी वर्ड है, और ईजी का कोड उसने लिखा, इस बारी कोड सिंबल दे विच दे दिता @ परसेंटेज, और उसने लिख दिता इसनों बेटे, मैं अगर कहा तो डी लिख देता, वाई नू डी लिख देता। इसी तरह उसने आंट ANT आंट का कोड लिखा उसने @ बच्चों सी लिख दिता बेटे, और टी नू उसने स्टार लिख दिता, और मैंने पूछा सेंट का कोड की होएगा, SANT सेंट का कोड की होएगा। प्यारे बच्चों जो एक तो ज़्यादा वर्ड तुहाडे कोल क्वेश्चन च गिवन होण, तो बस फिर तुसी की करना है, तुसी चुपचाप उन्हां दे आंसर जो कॉमन ने, देखो A का कोड @ है, इत्थे भी A का कोड @ है, तुसी भी A का कोड @ लिख दो। S का कोड परसेंटेज है बच्चों, तो परसेंटेज लिख दो। N का कोड कॉपीराइट आ रहा है बच्चों, N का कोड कॉपीराइट लिख दो बच्चों, और T का कोड चेक करो स्टार है बच्चों, तो T का कोड भी तुसी स्टार लिख दो। परसेंट का कोड अपने को आ गया। उम्मीद करता कॉमन कोडिंग समझ आया होगा। कॉमन कोडिंग मतलब जो एक तो ज्यादा शब्द दवे क्वेश्चन दे विच, तो बस फिर असी कोई लॉजिक नहीं वरतना, जो सानू सेम वर्ड मिले असी उहदे बिहाफ पे आंसर दे देवांगे बच्चों। आओ बेटे कोडिंग रिकॉर्डिंग का लास्ट जो मैं पैटर्न करवाने जा रहा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कन्फ्यूजन वाला है। इस विच क्वेश्चन भी अच्छे बनते हैं, बच्चे कन्फ्यूज भी चंगे होंगे ने, और इस 7th पैटर्न का मैं नाम रखा इलॉजिक। ये किसी तरह का कोई भी लॉजिक नहीं, कुछ अलग ही कुछ ना कुछ हो जाता है, इसमें ई लॉजिक का नाम दे दिता। दिस वन इज द 7th पैटर्न बेटा, ये जो मेरा होएगा 7th पैटर्न है बच्चों। आओ आप इस क्वेश्चन को करते हैं, ये बिहाफ पे इस चीज को समझते आखिर ई लॉजिक का मतलब की होया बच्चों। जिमें की किया उसने मैनू वर्ड दिता TSAE, ठीक है बच्चों, और इसनों उसने लिखा दो बिंदियां पाके इस जगह पे लिखा TSEW, और उस तो बाद फिर दो बिंदियां आईया, हुण आपां नूं पुछ रहा कि HTRON का कोड की होएगा बच्चों। कहना अगर मैं इस वर्ड नूं इस तरह लिखदा हाँ, तो इस वर्ड नूं अगे किवें लिखा जाएगा, आही क्वेश्चन पूछा गया, इसनूं इलॉजिक कहांगा बच्चों। बच्चों एहो जी जगह पे बहुत ज्यादा कॉमन सेंस समझी जाएगी बेटा। बेटे अगर इस क्वेश्चन में तुसी बड़े ध्यान नाल देखते हो, तो ये जो वर्ड है ना बच्चों, ये ईस्ट वर्ड है, जिसनों की किया हुआ है बच्चों ओपोजिट करके लिखा हुआ है। उम्मीद करना गल समझ आई। इसी तरह जेकर ईस्ट नू वो की लिख रहा है ओपोजिट करके, वेस्ट लिख रहा है WEST। उम्मीद करना समझ आ गई गल बेटा। तो यदा मतलब अगर ईस्ट का ओपोजिट वो इस तरह लिखता है, तो एक ही है, ये नॉर्थ है बच्चों, NORTH बेटे। जेकर मैं इस सारे वर्ड को सीधा करा तो एक ही बन गया, नॉर्थ बन गया। इट मीनस हुण नॉर्थ का ओपोजिट की होना चाहिए, नॉर्थ का ओपोजिट तो साउथ ही होना चाहिए, बट असी लिखना किवें है, असी लिखना ओपोजिट करके। तो साउथ के स्पैलिंग की ने SOUTH बेटा, आप ओपोजिट कर देने, किवें करिए, सब तो पहला H, फिर DT, फिर U, फिर O, और फिर S बेटा। हार्ट्रॉन जो ये वर्ड लिखा एदा कोड जो बन के आ जाएगा वो ये वाला आ जाएगा। उम्मीद करदा ये चीज समझ आई। तो कई बार कुछ इस तरह के लॉजिक दिंदा है सानू, जिहदे बिहाफ ते असीं आंसर नू फाइंड करना हुंदा है। बच्चों
मतलब ईस्ट ਦਾ ਰਿਵਰਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਵੈਸਟ ਦਾ ਰਿਵਰਸ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਈਸਟ ਨੂੰ ਵੈਸਟ ਉਸਨੇ ਰਿਵਰਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਅਗਰ ਮੈਂ ਨਾਰਥ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖਾਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਨਾਰਥ ਦਾ ਆਪੋजिट ਤਾਂ ਸਾਊਥ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਊਥ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਆंसर ਆ ਗਿਆ ਬੱਚੋ। ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਗੱਲ ਬੇਟਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਦੇਣਾ ਇਹ ਲੌਜਿਕ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੋ। ਜਿਵੇਂ ਬੇਟੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, क्वेश्चन है बच्चों RLYEA बेटा और इसनों उसने लिखा TELA बेटा। ठीक है बच्चों। और अपने को उस तो बाद उसने पूछा दो बिंदियां लाके बच्चों इसनों LDCO बेटे और अपन इसके बारे पता करना बच्चों। बड़े ध्यान नाल चीज नूं समझो, बहुत ही ध्यान नाल। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ने और एक क्वेश्चन है ना कॉमन पार्ट ने एग्जामिनर दे। एग्जामिनर इहो जे वर्ड लेके तुहाडे सामने रख दिंदा है, इस शब्द नूं सीधा करदे आ। अगर इस शब्द नूं आपां सीधा करिए तां की बनदा है मेरे को। अगर इस शब्द नूं आपां सीधा करिए, मैं थोड़ी गड़बड़ कर गया शायद, मैनूं इस जगह ते कुछ इस तरह लिखना चाहिदा सी बच्चों। जेकर देखा तां उसने किस तरीके नाल लिखिया, हाँ उत्थे उसने की किया नहीं, क्वेश्चन सही लिख दिता बेटा, मैं क्वेश्चन सही लिख दिता। देखो RLEYW, थोड़ा ध्यान नाल पढ़ो। उसने की किया इस शब्द तो शुरू की गल EA, उदों बाद अगे RLY अर्ली बना दिता बच्चों। उम्मीद करदा गल समझ आई। और अर्ली में उसने की लिखा LA सेम लिखा और अगे TE लिख दिता। इट मीनस अर्ली का ओपोजिट की हो गया पुत्र, लेट हो गया। अर्ली का ओपोजिट की हो गया, लेट हो गया। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। CO ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਸੀ ਔਰ LD ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੇ ਕੋਲਡ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੋਲਡ ਦਾ ਆਪੋजिट ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚੋ? ਕੋਲਡ ਦਾ ਆਪੋजिट ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਡੀਅਰ? ਹੌਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੌਟ ਦਾ ਆंसर ਕੀ ਦਵਾਂਗਾ ਬੱਚੇ ਮੈਂ? H, ਪਹਿਲਾਂ H ਆ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ T और O बेटा। ਤਾਂ ਹੌਟ ਦਾ ਆंसर ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੌਰੀ ਕੋਲਡ ਦਾ ਆਪੋजिट ਹੌਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਹੌਟ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, H, T और O बेटे। उम्मीद करदा चीज क्लीयर होई होगी बेटा। ठीक है जी, आओ मूव करते हैं आप अगले क्वेश्चन के बाद बेटा। जो अगला क्वेश्चन है उसनों देखते हैं बच्चों। कई बार की करता है बच्चों इसे इलॉजिक पैटर्न दे विच थोड़ा और कन्फ्यूज करता है। कहता कि फाइंड द ऑड वन, अलग लभो। फाइंड द ऑड वन, कोई अलग लभो। अलग की लभना है वो कुछ वर्ड दिंदा है, जिवें उसने लिखा YDN MOA, ये पहला क्वेश्चन लिखा उसने। फिर लिखा बच्चे YDU आएगा बच्चे थे YDUE, उस तो बाद लिखा TSA बेटा। और इसी तरह ही उसने लिखा YDSUAN बच्चों, आ चीज लिखी। और इसी तरह ही उसने लिखा YRCDE बेटे। मेरे को 4 वर्ड दे देते उसने, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। बच्चों ये इलॉजिकल पैटर्न है, इहदे बिहाफ पे आप क्वेश्चन कर रहे हैं। अरे बच्चों मैं इसको सीधा करके देखना, अगर सीधा करके देखना तो कुछ की बनना है उस चीज में देखते हैं। उसने एक्चुअल दे विच इस मंडे वर्ड नूं लिखा है। मंडे वर्ड नूं किवें लिखिया है? जिवें MONDAY, ये सारे दे सारे लैटर मंडे दे विच वरते जा रहे हैं। क्लियर हुई गल बेटा। तो फिर इसनों उसने की लिखा है? इसनों उसने ट्यूसडे लिखा है TUESDAY बेटा। क्लियर हुई गल बच्चों। इस वे दे नाल उसने इसनों लिख दिता बच्चों। और अगले दे विच उसने की लिखा है प्यारे बच्चों? अगले विच की हो सकता है? SU तो संडे ही पवेगा, असी SUNDAY संडे लिख देंगे। क्लियर हुई गल बच्चों, समझ पा रहे हो? मंडे, ट्यूसडे और संडे। देखो इस तो कोई दिन बनता, कोई भी दिन बनता हो किसी भी तरह का। अगर दिन नहीं बनता यही मेरा आंसर है, फाइंड द ऑड वन, जिहदे तो कोई दिन ना बनता हो। इस अखरां तो मेरा मंडे, ये रिवर्स नहीं लिखिया प्यारे बच्चों। ए ना सोच लो कि सारे का सारा रिवर्स है, नहीं। बस इन्होंने शब्दों तो कोई दिन बना के देखा बच्चों, असीं इन्होंने शब्दों तो कोई दिन बना के देखा और उहदे बिहाफ से असीं क्वेश्चन नूं सॉल्व कर लिया। इसी तरह ही कई बार वो क्वेश्चन इस तरह भी दे दिंदा है। मैं इस स्लाइड पर कर रहा बच्चों, देखो कई बार तुहानूं ना बेसिक जिहा क्वेश्चन आ जाता है, उस
ਲੇਵਲ ਦਾ ਹੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦਾ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ S, ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ M ਬੇਟੇ, ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ T, फिर W, फिर T लिख देता और फिर F लिख देता और पूछे ਅੱਗੇ ਕੀ ਆਏਗਾ ਦੇਖिए। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾਣਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਲੌਜਿਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੇਟਾ। ਇਲੌਜਿਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਉਂ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਇਹ T ਸੀ, T ਤੋਂ ਵੱਧਦਾ ਵੱਧਦਾ W ਹੋਇਆ, W ਤੋਂ ਵੱਧਦਾ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ T ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ F ਤੇ ਬੇਟਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੇਮ ਖੇਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਖੇਲ ਰਿਹਾ, S ਤੋਂ ਬੇਟਾ ਸੰਡੇ, ਉਸਨੇ ਸੰਡੇ ਲਿਖਿਆ, M ਤੋਂ ਬੇਟਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਉਸਨੇ ਬੱਚੇ, ਮੰਡੇ ਲਿਖਿਆ ਬੇਟਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਓ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਬੈਠੋਗੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਬੱਚੇ, ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਲਿਖਿਆ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਡੀਅਰ, ਵੈਡਨਸਡੇ ਲਿਖਿਆ ਬੇਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਥਰਸਡੇ, ਔਰ ਇਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਬੱਚੇ, ਫਰਾਈਡੇ। ਫਰਾਈਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੈਚਰਡੇ। ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਮੇਰਾ ਐਸ ਆਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਗੱਲ ਬੱਚੋ, ਸਮਝ ਗਏ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੇਟਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਬੱਚੋ ਇਲੌਜੀਕਲ ਪੈਟਰਨ ਬੇਟਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮ ਅਪ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਫਿਰ ਇਸੇ ਦਾ ਅਗਲਾ ਲੈਵਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਮ ਅਪ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਸਮ ਅਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੈਟਰਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬੇਸਡ। ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬੇਸਡ ਜਿਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਰਵਰਡ ਮੈਥਡ ਵੀ ਕਿਹਾ ਬੱਚੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਫਸਟ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੈਗੀ। ਅਗਰ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋਜੀਟ ਕੋਈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਆਪੋਜੀਟ ਬੇਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਤੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਾ ਲੱਗੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਾਮਨ ਕੋਡਿੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਾਮਨ ਕੋਡਿੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬੱਚੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਬੇਟਾ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਆਪੋजिट ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਮਨ ਬੇਟੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਰਵਾਏ ਸਨ ਉਹ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਫਾਰਵਰਡ, ਫਾਰਵਰਡ ਮੈਥਡ। ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਡਿਕਰੀਮੈਂਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੱਚੋ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਰਿਵਰਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੱਚੋ, ਰਿਵਰਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕ੍ਰੋਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੱਚੋ। ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਸਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਨਾ ਲੱਗੇ ਬੱਚੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਟਰਨ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਨਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੱਗੇ, ਨਾ ਆਪੋजिट ਲੱਗੇ, ਨਾ ਕਾਮਨ ਕੋਡਿੰਗ, ਫਾਰਵਰਡ, ਰਿਵਰਸ, ਕ੍ਰੋਸ, ਫਿਰ ਲਾਓ ਇਲੌਜਿਕ ਬੇਟਾ। ਇਲੌਜਿਕ ਬੜਾ ਰੇਅਰ ਹੈ ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸਕਿਪ ਕਰੋ, ਮੂਵ ਕਰੋ ਅਗਲੇ ਪਾਰਟ ਵੱਲ ਬੇਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਹੋਪ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਪਾਏ ਹੋਵੋਗੇ ਬੱਚੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੈਪਟਰ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਹੈ, ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਡਿੰਗ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1 ਇਜ਼ ਅ ਲੈਟਰ ਕੋਡਿੰਗ, ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਨੰਬਰ ਕੋਡਿੰਗ, ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਬੱਚੋ ਮਿਕਸ ਕੋਡਿੰਗ। ਮਿਕਸ ਕੋਡਿੰਗ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਜੋ ਨੰਬਰ ਕੋਡਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੇ ਨੇ ਜਾਂ SI ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਆਪਣਾ ਟਾਈਪ ਹੈ ਉਹ ਟਾਈਪ 2 ਹੈ ਬੱਚੋ। ਜੋ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੱਚੋ ਉਹ 2 ਟਾਈਪ ਹੈ। 2 ਟਾਈਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲਿਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਕੋਡਿੰਗ ਬੇਟਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ ਉਹ ਨੰਬਰ ਕੋਡਿੰਗ ਤੇ ਆਏਗੀ ਬੱਚੋ। ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਕੋਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੋ। ਨੰਬਰ ਕੋਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਟਾਈਪ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚੋ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੈਟ ਵਰਡ ਹੈ CAT ਔਰ ਕੈਟ ਦਾ ਕੋਡ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ 24। कैट का कोड की है 24। इसी तरह उसने क्या सैड SAD, सैड का कोड बेटा फिर 24 बच्चे। और फिर उसने क्या शी का कोड की होगा SHE, शी का कोड की होगा, ये पूछ लिया गया बच्चों। नंबर कोडिंग है तो हुण वो लैटर नूं नंबर दे नाल चेंज करता जा रहा है। तो कुछ नहीं करना पहले बच्चों, अपने प्लेस वैल्यू चेक करनी है। C किन्ने नंबर ते आंदा है 3 पे, A1 ਤੇ ਔਰ T ਬੱਚੋ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਆਂਦਾ ਹੈ 20 ਤੇ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੋ ਬੱਚੋ, 20 ਤੇ 1 21 ਤੇ 3 24। ਆ ਲਓ ਜੀ 24 ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ 19 ਸੀ, ਇਹ ਇੱਕ 20 ਬਣ ਗਿਆ ਪਲੱਸ 4 ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ 24 ਬਣ ਗਿਆ। ਬਸ ਆਪਾਂ ਵੀ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ 19 ਤੇ ਬੱਚੋ, ਇਹ 8 ਤੇ ਬੇਟਾ ਔਰ ਇਹ 5 ਤੇ ਬੇਟਾ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ 19 ਤੇ 8 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 27, 27 ਤੇ 5 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਡੀਅਰ 32। ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਮਾਈ 32। ਤਾਂ ਸੀ ਦਾ ਕੋਡ ਕੀ ਬਣਿਆ 32 ਬੇਟਾ। क्लियर हुई गल बेटा, समझ गए बच्चों इस चीज ਨੂੰ बेटा।
बड़े ध्यान नाल चीज़ नूं, इहदे विच मैं सारे दे सारे नंबर जोड़ रिहा। पहला टाइप मेरा यही है, सारे दे सारे नंबर जोड़ रिहा। और जरूरी नहीं है कि बस जोड़ के लिख देना है। इहदा अगला कंसैप्ट थोड़ा चेंज करके करावांगा चीज़ नूं समझना। बट फर्स्ट बेसिक क्वेश्चन तुहानूं समझ आया बच्चों कि असीं किस तरह इस क्वेश्चन नूं करांगे। इस तरह दे जो क्वेश्चन होणगे बेटा, तां असीं प्लेस वैल्यू जोड़ी। आओ बेटा मैं नैक्सट क्वेश्चन करवाना। नैक्सट क्वेश्चन के बिहाफ ते आपां अगे क्वेश्चन नूं समझांगे बच्चों। मेरे को जो अगला क्वेश्चन आया वो सी डी वर्ड बेटा, डी डबल ई पी बेटा। डीप नू वो लिखता है 60 बेटा जी, 60 लिख दिंदा है डीप नू बेटे। और फिर आया रैबिट, आर ए बी आई टी। रैबिट नू लिखदा है बेटा जी वो 100 बेटा। और असी पता करना हेयर दा कोड, एच ए आई आर। हेयर दा कोड कितना होएगा, बस कुछ नहीं उसे वे नाल आपां करांगे। 8 डी बेटा 4 ते, फिर 5, फिर 5, फिर 16 बेटे। 16 ते 10 बच्चों 26, 26 ते 4 बच्चों 30। इट मीनस इन्हां दा जोड़ तां 30 बनिया, बट लिख की रहा है 60 लिख रहा है। ਇਹਦਾ मतलब 2 नाल गुणा कर रहा है, 30 दूना 60। 30 ਨੂੰ डबल करके लिख रहा है बच्चों। इनू भी चेक कर लेने 18 ते 1 19, 19 ते 2 बेटा 21, 21 ते 9 बेटे 30, 30 ते बेटा 20, 50 बन गए। और 50 ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਬੱਚੋ, 50 ਨੂੰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ 100। ਇਟ ਮੀਨਸ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਆ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਬੱਚੇ 8 ਤੇ 1 9 ਤੇ 9 18, 18 ਤੇ 18 36 ਦਾ डबल फुट कितना होएगा 72। मेरा जो आंसर आएगा वो 72 आएगा। बच्चों इस लॉजिक तो तुहानू मैं ये दसना चाहना, जरूरी नहीं है वो हर वारी 2 नाल भाग करे। हो सकता है वो बच्चे 2.5 नाल गुणा कर दे, हो सकता है वो बच्चे 3 नाल, हो सकता है वो बच्चे 5 नाल। वो आपां नूं चेक करना पएगा किसी भी नंबर दे नाल, एनी नंबर दे नाल वो मल्टीप्लाई कर सकता है बच्चों। और एनी नंबर दे नाल वो डिवाइड भी कर सकता है बच्चों। क्लीयर होई गल बेटा, समझ रहे हो बच्चा। तां पहला कंसैप्ट दे विच असीं की सिੱਖਿਆ, कल्ला ऐड कीता उसने बेटा। मैं दूसरे कंसैप्ट की गल करा तो उसने ऐड प्लस गुणा की बेटा एनी नंबर दे नाल, किसी भी नंबर दे नाल। हो सकता है वो ऐड प्लस डिवाइड भी करे एनी नंबर दे नाल, आ भी काम कर सकता है। किसी भी नंबर दे नाल वो भाग भी कर सकता है। उम्मीद करना ये चीज समझ आई। आओ एक क्वेश्चन मैं और देना, और उस क्वेश्चन दे राही अपना थोड़ा कंसैप्ट और क्लीयर हो जाएगा कि असी जो कर रहे हैं उहदे विच किहड़ी-किहड़ी मेन चीज है बच्चों। जिवें 2 TO 2 ਦਾ ਕੋਡ बेटे वो 70 दे रहा है। और इसी तरह शी SHE शी ਦਾ कोड जो दे रहा है वो 96 दे रहा है बच्चों। और मैनू राउंड ਦਾ कोड पता करना है, ROUND। मैं राउंड ਦਾ कोड पता करना है। आओ बच्चों देखते हैं ਆਪਾਂ। देखा जाए तो होया कि बच्चों ये किन्ने ते सी 20 ते, और ये किन्ने ते डियर 15 ते। 20 ते 15 किन्ने होंदे ने पुत्र 35। ਆਪਾਂ देखिए तो 35 ਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, 2 ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ 35 दूना 70 बन गया। आओ बच्चों ये 19 ते सी, ये 8 ते सी, ये 5 ते सी बेटा। 8 5 13, 13 ते 19 किन्ने हो गए बच्चों। अगर मैं देखा 13 तो 19 बन गए 32 बेटा। अच्छा हुण 32 ਨੂੰ 96 बनाना मैं देखा 32 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ 96 आ रहा है, डेफिनेटली 32 तिया 96। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਸਨੇ 32 तिया 96 कर ਦਿੱਤਾ। अरे बच्चों हुण देखो ये किन्ने ते है, ये 18 ते, ये 15 ते, ये 21 ते, ये 14 ते, और ये 4 ते बेटा। देखा जाए तो जोड़ लाइए सारिਆਂ ਦਾ कितना होएगा 18 + 15 बच्चों 33, 33 ते प्लस 20 बेटे 53 ते 54, 54 ते 10 बेटे 64, 64 ते 8 किन्ने हो गए बेटा 18 + 15 + 21 + 14 + 4 78 हो गया आई थिंक बच्चों। चलो जी 78 अगर हो गए ने तो मेरे ही हिसाब नाल हुण किन्ने नाल मल्टीप्लाई करे वो बच्चे, किन्ने नाल 78 ਨੂੰ मल्टीप्लाई करे। इस समय ना मोस्टली बच्चे की करनगे, बच्चे कहणगे सर जे पहला उसने 2 नाल गुणा कीता, फिर उसने 3 नाल गुणा कीता, तो मतलब अगला भी जो है जिन्ना भी नंबर आवेगा उसनू 4 नाल गुणा कर दो। जिवें ही तुसीं इसनू 4 नाल गुणा कर दोगे आंसर रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, एक्चुअल होया कि इस बारी वो लैटर की गिनती नाल गुणा कर रहा। आ किन्ने लैटर सन 1 ते 2, टी ते ओ, ये 2 ही लैटर सन तो 2 नाल गुणा कर दी।
ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਲੈਟਰ ਸਨ ਬੱਚੋ 3 ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਲੈਟਰ ਨੇ ਬੇਟਾ 1 2 3 4 ਤੇ 5 ਬੇਟਾ ਇਟ ਮੀਨਸ 5 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗਾ 8 5 40 ਡੀਅਰ 4 7 5 35 ਤੇ 4 ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਬੇਟੇ 35 ਤੇ 4 ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 7 5 35 ਤੇ 4 390 ਬੇਟਾ ਤਾਂ ਆंसर ਮੇਰਾ 390 ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਬੱਚੋ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਜੋੜ ਸਹੀ ਲਾਇਆ। ਅਗਰ ਜੋੜ 'ਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜ ਲਾ ਕੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 5 ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੋਗੇ ਬੇਟਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਗੱਲ ਬੱਚੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕੋਡਿੰਗ ਦਾ ਫਸਟ ਟਾਈਪ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ ਲਵਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਸ 'ਚ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਬੱਚੋ ਨੰਬਰ ਕੋਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੇ ਹੈ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬੱਚੋ। ਆਓ ਡੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੱਚੋ ਜੋ ਨੰਬਰ ਕੋਡਿੰਗ ਦੀ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖिए ਜਿਵੇਂ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਔਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਥੋੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜੋ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੇਟਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ E ਦਾ ਕੋਡ 5 ਹੈ। E ਦਾ ਕੋਡ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਬੱਚੋ 5 ਹੈ। फिर उसने होटल वर्ड लिखा HOTEL बेटे होटल का कोड बेटे वो दे रहा है 12 बच्चे मैंने और इसी तरह बच्चों LAMB लैम का कोड पता करना है LAMB लैम का कोड अपने पता करना है बच्चों। बेटे E नू 5 है तो वो 5 की वैल्यू 5 ही लिख दी। ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੋ ਇਹ 8 ਤੇ ਇਹ 15 ਤੇ ਇਹ 20 ਤੇ ਇਹ 5 ਤੇ ਔਰ ਇਹ 12 ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੋੜ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ 20 ਤੇ 20 40 40 ਤੇ 10 50 50 ਤੇ 60 ਬਣ ਗਿਆ ਬੱਚੋ। ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਗੱਲ ਬੇਟਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਬੇਟੇ 60 ਬਣ ਗਿਆ। 60 ਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਬੇਟੇ 60 ਨੂੰ 12 ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਵਾਰੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ 60 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂ ਕਿ 12 ਬਣ ਜਾਣ ਇਟ ਮੀਨਸ 5 ਨਾਲ ਇਟ ਮੀਨਸ 5 ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਬੇਟੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿੰਨੇ ਲੈਟਰ ਨੇ 1 2 3 4 ਤੇ 5 ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ 5 ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ 5 ਨੂੰ 60 ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 12 ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਲੌਜੀਕ ਦੇਖੀਏ ਉੱਪਰ ਕੀ ਸੀ 5 ਹੀ ਸੀ 5 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 1 ਨਾਲ ਕੱਟਾਂਗਾ ਤਾਂ 5 ਹੀ ਆਏਗਾ। ਆ ਲਓ ਜੀ ਆ ਤਾਂ ਕੰਮ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਸ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ये 12 ਤੇ ਇਹ 1 ਤੇ ਬੱਚੋ ਇਹ 13 ਤੇ ਔਰ ਇਹ 2 ਤੇ ਬੇਟਾ 13 ਤੇ 13 26 ਤੇ 2 28 ਬੱਚੋ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਾਂ ਬੱਚੋ ਕਿੰਨੇ ਲੈਟਰ ਨੇ 1 2 3 ਤੇ 4 ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਲੈਟਰ ਨਾਲ ਭਾਗ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜੋ ਆंसर ਆਇਆ ਉਹ 7 ਆਇਆ ਤਾਂ ਲਿਮ ਦਾ ਕੋਡ ਬੱਚੋ 7 ਬਣ ਗਿਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਗੱਲ ਬੇਟੇ ਸਮਝ ਗਏ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੱਚੋ। आओ बेटे मैं एक क्वेश्चन और करवाना हाँ और फिर मूव करते हैं बच्चों। जिवें इस क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਵੀ ਬਰੀਕ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ ਆਖਰ ਇਸ क्वेश्चन ਵਿੱਚ ਲੌਜੀਕ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ क्वेश्चन ਨੂੰ ਖੁਦ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਓ ਆਪ ਬੇਟੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ T ਤੇ O और TO ਦਾ ਕੋਡ ਹੈ 19 ਬੱਚੋ TO ਦਾ ਕੋਡ ਹੈ 19 और MY ਦਾ ਕੋਡ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ 16 MY ਦਾ ਕੋਡ ਹੈ ਬੱਚੋ 16 बेटा जी और HE ਦਾ ਕੋਡ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਬੱਚੋ ਮੈਨੂੰ HE ਦਾ ਕੋਡ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਿਓ। ਮੈਥਡ ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਮੈਥਡ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਗੁਣਾ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬੇਟੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬੱਚੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋ ਕੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਫਰਸਟ ਟਾਈਪ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਨਸੈਪਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੀਟ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਆਖਰ ਕੀ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ एग्जामिनर जो भी क्वेश्चन ਨੂੰ करेगा बच्चों। तो चलो चेक करते हैं आप देखते हैं की चीज ਨੂੰ ਵਰਤ सकता है बेटी। थोड़ा जा पेंसिल जो है उसको डार्क कट करा ताकि बेटर लिखा जा सके बच्चों। पहला कंसेप्ट तो वो ऐड का यूज कर सकता है ना कि ऐड करके सारियां दी प्लेस वैल्यू लिख देगा। दूसरा की कर सकता है ऐड करके वो किसी भी नंबर के नाल गुणा कर सकता है ਜਦੋਂ भी गुणा होएगी तो चीज प्लस ਵਿੱਚ ही आएगी ਵਧੇਗੀ बेटा वैल्यू ਦੇ ਵਿੱਚ। तीसरा कॉन्सेप्ट कमा तक ही कर सकता है प्यारे बच्चों ऐड करके बेटा डिवाइड कर सकता है किसी भी नंबर के नाल और किसी भी नंबर के नाल जो किसी चीज ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬੇਟੇ ਘਟਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ 60 ਨੂੰ ਮੈਂ 5 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਘਟ ਕੀ ਆਏਗੀ ਵੈਲਿਊ ਬੇਟੇ 12। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆਈ ਬੱਚੋ। चौथा कंसेप्ट की बन सकता है बच्चे कई बार की करता है वो ऐड कर लेना है ओपोजिट लैटर बेटे पुठे लैटर बेटा। मैं कुछ क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਪਾਇਆ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਰਿਪਲਾਈ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਬੇਟਾ। और कई बार की करता प्यारे बच्चों वो ओपोजिट लैटर ਨੂੰ ऐड करके ओपोजिट लैटर ਨੂੰ
ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਲੈਟਰ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਬੱਚੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਗੁਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ 6ਵਾਂ ਕੰਸੈਪਟ ਆ ਲਾਸਟ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 7ਵੇਂ ਨਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਸੈਪਟ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆ ਲੋ ਬੱਚੋ ਭਾਗ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ। ਪਹਿਲਾ ਕੰਸੈਪਟ ਬੱਚੋ ਐਡ ਕਰੇਗਾ, ਦੂਸਰੇ ਕੰਸੈਪਟ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਗੁਣਾ ਕਰੇਗਾ ਪਲੱਸ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਐਡ ਕਰਕੇ ਬੱਚੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਭਾਗ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਵੈਲਿਊ ਘੱਟ ਆਏਗੀ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਲੈਟਰ ਦੇ ਨੰਬਰ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਲੈਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ, ਜਿਵੇਂ ਟੀ ਹੈ, ਟੀ ਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ ਉਹ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਲੈਟਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਾਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਲੈਟਰ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਟਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਜਾਂ ਭਾਗ ਦਾ ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ ਇਸ ਕੰਸੈਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 6 ਹੀ ਪੈਟਰਨ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਔਰ ਪੈਟਰਨ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਬੱਚੋ। ओके, मैं एक मिनट वीडियो का टाइम देखना, वीडियो का टाइम कितना हो गया है, लगभग बच्चे 41 मिनट वीडियो ते हो गए ने। चलो एक दो क्वेश्चन मैं और करवाने चाहांगा ताकि तुहानू कंसेप्ट समझ आए। और लास्ट विच बेटा जी तुहानू फिर मैं जो कल जो मैं पिछली वीडियो दे विच कुछ क्वेश्चन दिते सन तुहानू वो वाले भी बेटे उन्हां दे लाइव क्वेश्चन दे आंसर भी देवांगा बच्चों। बेटे कई बारी की हुंदा है, ਇਸੇ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨੰਬਰ ਕੋਡਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਪ 2 ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਟਾਈਪ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਟਾਈਪ 2 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਟਾਈਪ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਕੋਡ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ACNE ਬੇਟੇ, ACNE, ਔਰ ਉਹਦਾ ਕੋਡ ਦਿੱਤਾ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 3 7 29 ਐਂਡ 11 ਬੱਚੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੋਡ ਦਿੱਤਾ। और मेरे तो पूछा गया उसने कि बॉयल का कोड की होएगा BOIL बेटा। ये मैं टाइप 2 दस रहा, कादा टाइप 2 नंबर कोडिंग का ही। नंबर कोडिंग का पहले टाइप के सारे कंसैप्ट मैं दस दिते। ये बड़ा छोटा जिहा टाइप है, मिनटां च खत्म हो जाएगा। इस बारी वो लैटर ना देके सानू कल्ली वैल्यू दे रहा है। क्लियर कर पा रहे हो बेटा? इस बारी की कर रहा है वो सानू कल्ली वैल्यू दे रहा है। अगर देखना तो ये 1 पे सी, ਇਹ 3 ਤੇ ਸੀ, ਇਹ 14 ਤੇ ਸੀ, ਇਹ 5 ਤੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਉਸਨੇ 1 ਨੂੰ 3 ਬਣਾਇਆ। 1 ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ, ਉਸਨੇ 3 ਬਣਾਇਆ। ਚਲੋ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ 1 ਨੂੰ 3 ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਇੱਥੇ ਕਨਸੈਪਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, 1 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਜੋੜਿਆ ਤਾਂ 3 ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਬੱਚੋ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਗੱਲ ਬੇਟਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਵਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ 3 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ हैं, 3 दूना 6 प्लस 1 करते हैं बच्चों, तो 7 बन गया बच्चे। इसे तरह की किया उसने 14 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ प्लस 1 किया बच्चे, 29 बन गया बच्चों। और इसे तरह ही 5 ਦਾ 11 ਬਣਿਆ है, तो 5 ਤੋਂ डबल करके 1 जोड़िया गया है। फिर वही गल बेटा सेम आप इस नाल करांगे जो बॉयल वर्ड है। ये 2 ते है, ये 15 ते है, ये 9 ते है और ये 12 ते है। ਬੱਚੋ ਜੇਕਰ 2 ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ 2 ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, 2 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 2 ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਵਰਡ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਲੱਸ 1 ਕਰਾਂ। 2 दूनी 4 ਤੇ 1 5 ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ 15 ਹੈ, 15 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਕਰਾਂ ਪਲੱਸ 1 ਕਰਾਂ ਬੇਟੇ, 15 दूना 30 प्लस 1 31, 9 दूनी 18 प्लस 1 19 और 12 दूनी 24 प्लस 1 बेटे 25। तो मेरा आंसर आ गया 5 31 19 एंड 25। उम्मीद करना गल समझ आई होगी। अफसोस समझ आया बच्चों। आओ इसी तरह का एक क्वेश्चन और देना तुहानू और समझो, और फिर आप लास्ट वाले जो पॉइंट ने उन्होंने चर्चा करांगे डियर बेटे। अगला क्वेश्चन लिखो, WORK वर्क का कोड दे रहा है 4 12 9 16 बेटे। और मेरे तो पूछा डन का कोड DONE डन का कोड। तो चेक करते हो की रहा है। प्लेस वैल्यू लिख लिए 23 15 18 ते 11। अच्छा चेक करो हो की रहा है बेटे। उसने W ਨੂੰ 4 क्यों लिखिया? आई थिंक तुसी समझ पा रहे होवोगे। W ਦੀ opposite वैल्यू की है D और D ਨੂੰ उसने 4 लिख दिता। 23 ਤੇ 4 किन्ने होंगे 27
15 ਤੇ बचे मैं देखा था 15 ਤੇ 12 बेटे 27, 18 ਤੇ 19 बचे 27 और 11 ਤੇ 16 बचे। ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਸਨੇ ਲੈਟਰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਓਪੋजिट ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਬੇਟਾ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ 4 ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ 4 ਦਾ ਕੀ ਲਿਖਦਾ 23 ਲਿਖਦਾ। ਇਹ O ਹੈ O ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ O ਦਾ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਲਵ मतलब ज्यादा है ना 12 बच्चों और N ਤੇ मैं 13 लिखता मैन और E ਤੇ इवनिंग बेटा 22 लिखना बच्चों। तो मेरा आंसर आ गया क्योंकि ये 4 सी ये 15 सी ये 14 सी और ये 5 सी बच्चों। क्लीयर हुई गल बेटा सारिਆਂ ਦਾ ਸੀ 27 ही बनाना सी बस 27 बना देता। उम्मीद करता ये गल भी क्लीयर हुई होगी कंसैप्ट भी समझ आया होगा बच्चों। क्लीयर है जी डन बेटा ये चीज आओ डियर हुण चलते हैं आप अगले मुद्दे वाल। जो अगला मुद्दा है वो मेरा लास्ट जो ਤੁਹਾਨੂੰ मैं पिछली वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ क्वेश्चन ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਬੱਚੋ उस क्वेश्चन ਦੇ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ आंसर देने ਚਾਹਾਂਗਾ जो बहुत सारे बच्चों ने रिप्रेजेंट ਕੀਤੇ ਸਨ क्वेश्चन और मैं पढ़े भी बहुत सारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन बच्चों और बाकी कुछ बच्चों ਨੂੰ वाकई लग रहा ਸੀ कि सर ये क्वेश्चन मैं बहुत सारे कंसेप्ट ला लए बट समझ नहीं आया ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਝਾ ਪਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। तो मेरा पिछला जो क्वेश्चन सी जो फर्स्ट क्वेश्चन सी वो मिरेकल सी MIRACLE। कुछ बच्चों ने इसका आंसर बिल्कुल सही दिता सी। मिरेकल का कोड लिखा सी असी XMOAYH&A बेटा मेरे को ए वाला सी बच्चों। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੋਡ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ PRELIM और S बेटे प्रीलिम्स ਦਾ ਕੋਡ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। बस कुछ नहीं करना प्लेस वैल्यू लिखो 13 ਤੇ 9 ਤੇ 18 ਤੇ 1 3 12 ਤੇ 5 बच्चों। ਇਹ 24 ਤੇ ਇਹ 13 ਤੇ ਇਹ 15 ਤੇ ਇਹ 1 और ਇਹ 25 और ये 8 बेटा और ये 1 बच्चों। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪੈਟਰਨ ਵੀ ਦੱਸਿਓ ਪੈਟਰਨ ਕਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ और ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੱਚੋ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਦੇਖੋ ਬੇਟੇ 13 ਤੋਂ 15 ਬਣਿਆ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਗੱਲ ਬੇਟਾ ਕਿੰਨੇ ਜੁੜ ਗਏ 2 ਜੁੜ ਗਏ ਬੇਟਾ 13 ਤੋਂ 15 2 ਜੁੜ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਬੱਚੋ 9 ਦਾ 13 ਬਣਿਆ 9 ਦਾ 13 ਕਿੰਨੇ ਜੁੜ ਗਏ ਬੱਚੋ 4 ਜੁੜ ਗਏ बेटा। फिर देखा जाए 18 तो की बनया पुत्र 24 बनया 6 जुड़ गए। उम्मीद करना गल समझ आ रही है। इस तरीके नाल मूव किया असी 13 तो 15 2 जोड़े 9 तो 13 4 जोड़े और 18 तो 24 6 जोड़ दिते। इसनों एज इट इज ही रहन दिता ना जोड़िया ना माइनस किया ए दा ए रहन दिता। इधर की होया बच्चों ए इत्थे जाके 2 माइनस हो गया बेटा क्लियर और ए वाला इत्थे जाके 4 माइनस हो गया बच्चों और ए वाला इत्थे जाके बच्चों 6 माइनस हो गया। उम्मीद करता गल समझ आई बेटा। इस विच की कर गया वो फॉरवर्ड मैथड यूज कर गया फॉरवर्ड दे नाल नाल और की यूज कर गया बच्चों क्रॉस पैटर्न भी यूज कर गया 2 मैथड यूज कर गया फॉरवर्ड दे विच इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट दोनों यूज कर गया। आपां भी इसे तरह करते हैं ये 16 है 2 जोड़े तो इत्थे 18 बन गए और ये 18 है 18 4 22 होंगे ने क्योंकि इत्थे मैनू 2 जोड़ने ने इत्थे पुत मैं 4 जोड़ने ने और ए वाली जगह ते देखा तो 6 जोड़ने ने 6 ते 5 सॉरी ये 5 है तो मेरे विच 6 जोड़ने ने तो किन्ने बन जाएंगे डियर 11 बन जाएंगे 11 ते की आंसर होना चाहिए इत्थे के आ जाएगा बच्चों। एल दा आपां एल एज इट इज रखांगे ये 9 है इत्थे जाके 7 बनेगा जी बेटे और यह 4 घटना है 13 चो 4 गए 9 बेटे आई ऑप्शन और ये 6 घटना है 19 चो 6 गए डियर किन्ने हो सकते हैं बच्चों एम आ जाएगा 13 बेटे। तो मेरा जो आंसर बनेगा वो बनेगा KVR L एज इट इज आएगा MI और G। उम्मीद करना मिरेकल जिन्होंने बच्चों ने सही कढ़िया उन्होंने मुबारक बच्चों और जिन्होंने ये पैटर्न नहीं समझ आया तो प्लीज इस पैटर्न को जरूर समझो बेटे। आओ बेटे जो मैं एक अगला क्वेश्चन दिता सी लास्ट क्वेश्चन है उसनों करते हैं आप दैन बच्चों आप वाइंड अप करांगे अपने लैक्चर में बच्चों। जो लास्ट क्वेश्चन सी डियर अच्छा क्वेश्चन सी वो भी बेटे और मैं क्या सी ब्रेक थ्रू दा मैनू कोड दसो और ये अपना जो पैटर्न सी 4th पैटर्न सी जिसनों पोजीशन बेस्ड आख्या सी ब्रेक थ्रू लिख लेने एक बारी
BREAKTHROUGH बेटे। ਤਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਥਰੂ ਦਾ ਕੋਡ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ EAOUHR, ਫਿਰ ਬੱਚੇ BR, ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ GH, और उस तो बाद बच्चे मेरे को KT बच्चे, ठीक है जी, HRBRGH KT बेटे। और ਅਸੀਂ फाइंड करना सी डिस्ट्रीब्यूशन का कोड DISTRIBUTION बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन का कोड आपने फाइंड करना सी बच्चों। बड़े ध्यान नाल चेक करना पेगा। जेकर तुसी ऊपर ब्रेक थ्रू विच जिन्ने भी लैटर लिखे ने अगर वो नीचे वाले पोजीशन चेक करते हो तो वो सेम वही ने, कोई नवा लैटर नहीं आया। बट गेम प्ले की हुई है, गेम कुछ इस बार ये हुई इन्होंने पेयर बना ले दो दो दे, ये दो दा पेयर, ये दो दा पेयर बच्चों, ये भी दो दा पेयर बना लिया, ये भी दो दा पेयर, इस तरह पेयर बना ले। इनू मैं पहला नंबर दे देना पहला पेयर, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर, ये चौथा पेयर, ये पंजवां पेयर और ये छेवां पेयर बेटा। उसने किया कि दूसरा पेयर पहला लिख देता, EA इत्थे लिख देता, OU चेक करो पंजवां पेयर इत्थे लिख देता, HR चेक करो चौथा पेयर इत्थे लिख देता, BR चेक करो पहला पेयर इत्थे लिख देता बच्चों, और GH चेक करो छेवां पेयर इत्थे लिख देता बेटा, और KT चेक करो तीसरा पेयर इत्थे लिख देता। उम्मीद करना गल समझ आई होगी। बस आपने भी की करना है, दूसरा पेयर आ वाला है, इनू ST इत्थे लिख देंगे बच्चे। उस तो बाद पंजवां पेयर केड़ा है, आ तीसरा है, आ चौथा है, आ पंजवां है, इसनू मैं T और I इत्थे लिख दांगा बच्चों। उस तो बाद मैनू की चाहिए, चौथा पेयर चाहिए, चौथा पेयर BU, आप BU इत्थे लिख देंगे बच्चे। फिर मैनू पहला पेयर चाहिए DI लिख दांगा बच्चों मैं। फिर मैनू छेवां पेयर चाहिए, छेवां पेयर केड़ा है ON बच्चों, मैं इत्थे लिख दांगा। और लास्ट से मैनू तीसरा पेयर चाहिए RI। उम्मीद करदा ये क्वेश्चन भी तुहानू समझ आया। बड़े ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सन और बड़ा ही एक अच्छा कंसैप्ट सी, और मैनू बड़ी खुशी हुई कि असीं इस कोडिंग डिकोडिंग के चैप्टर के सारे पैटर्न सीख ले ने बड़ी ही आसानी नाल। चीज़ां नू दो ही तरह के पैटर्न आते हैं, लैटर कोडिंग आती है या फिर नंबर कोडिंग आती है। मिक्स कोडिंग जो है वो बैंक का पार्ट है बच्चों। प्यारे बच्चों, अंत में मैं कहना चाहांगा कि असीं इस दे रिगार्डिंग जिन्ने भी क्वेश्चन ने प्यारे बच्चों मैं इस ऐप पे तुहानू अपलोड कर दांगा बच्चों। इस ऐप पे ग्रेस अकेडमी की ऐप पे तुहानू मिल जाएंगे बेटा। और बड़ी जल्दी ही प्यारे बच्चों जो मैं चैप्टर करवा चुके हाँ, एक तो डिस्टेंस एंड डायरैक्शन का आने वाले एक अद्धे दिन के असीं डाउट लेने बच्चों। और इंग्लिश की वीडियो की डिमांड हो रही सी, इंग्लिश की वीडियो भी कोशिश करदा बेटे स्टार्ट कर दिए। कुछ ज़्यादा बिजी शेड्यूल होने के कारण असीं पहला नहीं कर पाए बेटा। हाँ, तो तुसी प्लीज़ इस प्ले स्टोर पर जाके इन्हां चीज़ों को बेटे जरूर देख लियो बेटा। तुहानू सारी दी सारी असाइनमेंट इहदे विच अपलोड कर दी जाएगी। इन केस तुहानू इस लैक्चर के प्रति या फिर कोई क्वेश्चन या सम नहीं समझ आ रहा, वो रिगार्डिंग कोई डाउट होंदा तो ये मेरा नंबर है बच्चे, तुसी मैनू पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो बेटा। व्हाट्सएप पे मैसेज करो, चाहे वॉइस मैसेज ड्रॉप कर दो, चाहे ऐप पे तुसी कोई मैसेज सेंड कर दो। मोस्टली जो असीं फ्री होने रिप्लाई कर दें इस तरह के क्वेश्चन के बच्चों। थैंक यू सो मच बच्चों। अज आपने कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर कंप्लीट कर दिता है। आने वाले दिनों में जो अगला चैप्टर है आप लैके आवांगे, कोई अच्छा चैप्टर जो तुहाडे जो मैं कहना चाहांगा सिलेबस के विच होवे, कांस्टेबल दे और SI के सिलेबस के विच या फिर पटवारी के सिलेबस के विच जरूर होवे बच्चों। ओके डियर, थैंक यू सो मच, तुसीं इन्ना सਮਾं दित्ता। थैंक यू डियर, थैंक यू।